Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. My dear fellow students and colleagues and those who are appearing in the postgraduate examinations either in the country or outside the country. One of my friend has asked why you are stressing and taking these lectures on infections or infectiology. Actually, remember one important point, because I have taken 8 tutorials since in 10 days, that there are the dermatological manifestations of systemic disease. Dermatological manifestation of the systemic disease. These are called the peripheral stigmata of the systemic disease. Second point is that there are certain dermatological manifestation which can lead to the systemic disease. So there are systemic parameters or stigmatas of the dermatological diseases. Now these points are important. I've already said that about 60% have been asked previously in MRCP examination from the dermatological manifestations. 10% are the pure dermatological conditions and 20% dermatology was given or the result of the systemic disease. They are interested because now they are fair people and these manifestations very soon appear on the skin and they noticed it. And then they come to the internal medicine or internist, not directly going to the dermatology. GP referred to the internist. Internist will diagnose, he should diagnose this condition, and if it is necessary then he will refer to the dermatological department, otherwise not. So we are today one of the streptococcal diseases. I already mentioned out in my previous lecture that you should understand how to classify the streptococci. And these are, it is the benefit grouping. Then you go for the group graphic typing, and you go for the serotypes or the genotypes for the epidemiologists. And these are the classification. How we will do this streptococcal. The group A, it may be alpha hemolysis or beta hemolysis or gamma hemolysis. So you have first said that it is group A or B or C or D, and then you proceed onwards. For example, this is a disease which I have seen actually when I was a student and I was posted in pediatric ward. And there are 2 professors at that time, Professor Ghaffar Billu and Associate Assistant Professor Zeenat Asani. And there are 2 or 3 people more there. They facilitated us about these basics of the pediatrics. And the Madam Zeenat Asani had said at that time that there are a few specific lesions you will see in these postings which you will never see in your life. She was correct. Because this is the fever with the rash, number 1. It occurs in the pediatric population. Number 3, do not take easy with this matter because it will lead to the complications. Now, Scarlet Fever. I am facilitator
facilitating Professor Ali Heather as a visiting professor of medicine, Jinnah Sindh Medical University. The introduction of this Scarlet Fever, why it is important? Because you missed it. You missed it. There may be possibility of cellulitis or something else. Or it may be you may diagnosing measles, for example. No. It's very specific introduction. Introduction of it is that the Scarlet Fever, also known as the scarlatina, it is the infectious disease caused by the Streptococcus pyogenes, group A Streptococcus, first of all. It is a beta hemolysis or alpha hemolysis. Let's see afterwards. The infection is a type of the group A streptococcal infection. A. It is mostly commonly affects the children between 5 and 15 years of age. Very interesting situation if the child is 12 years and 2 months. Then the pediatrician will refer to the internal medicine. On the other hand, if the child is 11 years and 10 months, reaching towards 12 months, when he arrived in this medical OPD, they will refer to the pediatrician. If there is a war going on between the pediatric OPD and the medical OPD, that this child should be referred to the pediatric OPD or from the internal medicine OPD and vice versa. अभी हैंगओवर हो गया ना यहाँ पे, ना वो लेने को तैयार है ना वो लेने को तैयार। उस औरत जो बच्चा लाई है, now wastage of time. This is called wastage of time. I have dealt all type of cases in my life. Whether it is 12 or 10 or 8 or 5 or 6, even neonates have been examined by me. I was highly interested to see these cases. But these cases are only seen in this age group. Not for the sake of the, important point is that when you are going to for the FCP's 2 examination, you often visit the wards of the NICVD surgical wards. Why? Why not medical wards? Because there are preoperative patients there with the mitral stenosis or mitral regurgitation or PDA. That's why you are going there. You are going there. But you are not visiting the pediatric world because it is not shown or it has not been presented in the examination of the HCPS. So the lack of knowledge will be there because in the HCPS examination also the patient providers, they are providing these patients from the medical ward, not from the pediatric ward, or not from the gynae ward, for example. Now I was failed rather. I was expecting distinction in medicine in 1982 examination, 1981-82. I was expecting distinction in medicine. Long case was given to me. She was referred by the gynae ward in the internal medicine. 1 year, 1 day before, history was taken by the house officer, and I was at the time no knowledge about that patient. She was diabetic, and she had delivered a very, big baby, or the weight of about 7 kilograms, 6.5 kg baby. She delivered.
She had the gestational diabetes mellitus, and there was a history of diabetes in the family. For the control of the diabetes mellitus, or for the other problems she had along with this, after the delivery of 3 or 4 days before, she was referred to the internal medicine for the management. I took the history from A to Z, where I should stress on the history to diagnose this condition, because I don't know about the investigation. A heavy woman, primary gravida, delivered a very, big child with a weight of 7 kilogram. I'm saying kilogram, not pound. It was hard labor at that time. She delivered it. And at the time of the delivery, her blood sugar level was 250 milligram. After 2 to 3 days, they tried to control it, but there were certain complications associated with that lady, and they referred to the internal medicine. I was stressing the delivery of the baby, the family history. She has no history of polyuria, polydipsia, polyphagia. But her weight was around 75 or 80 kilograms at that time. And she was primary gravida at the age of 25 years. She delivered this baby. So I stressed on these points, because there was no history of anything. And there are certain, complications there. She was hypertensive also. And she had been treated for the preeclampsia previously in the same pregnancy. So gynae history is important in this context. So I presented this case to the examiner. And he said that, why you are stressing the gynecological history or obstetrical history in this? Why you are? I said that because the more of the points we can gain from that history to diagnose this condition, otherwise we cannot diagnose. I have no idea about it. तो कहने लगे वो कि भाई इसको क्या ज़्यादा पानी पीती है, ज़्यादा खाना खाती है, ज़्यादा पेशाब आता है। मैंने कहा नहीं आता। मैंने तुमने कैसे कह दिया डायबिटीज मेलाइटिस? मैंने कहा सर ये हिस्ट्री है पेशेंट की, ये बता रही है इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। कहने लगे फिर दोबारा कहो ये बात भी, जुमला दोहराओ। मैंने फिर दोबारा जुमला दोहराया। तो उन्होंने ये कहा, and he said that there is, इसमें तो इंटरनल मेडिसिन की कोई बात ही नहीं है, तो सब गायनोकोलॉजी की हिस्ट्री दे रहे हैं आप। क्या हमारे वार्ड में सिर्फ गायनी ऑफ्स के पेशेंट एडमिट हैं? Why you are saying polyphagia, polydipsia, polyuria, and so on? Weight loss और ये जो चीज़ें। मैंने कहा सर there was no such history in this patient. He said that you are a very poor clinical judgment. And he said that you are arguing with me. And then he said that in front of you, I am giving you 0 marks out of 100. अब ये बताइए आप एक पेशेंट कैंडिडेट जो डिस्टिंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हो, जिसने जड़ तक पढ़ा हुआ उसको, उसको पेज नंबर याद है डेविडसन के, नोट्स उसने बनाए नहीं हैं इसके, उसको 0 मार्क दे दें आप, 100 आउट में से 0, तो वो फिर इंटरनल मेडिसिन में तो पास नहीं हो सकता। चाहे वो जितना भी अच्छा परफॉर्म करे टेबल वाइवा में, और जितना भी अच्छा परफॉर्म करते शॉर्ट केसेस में, तो वो पास नहीं हो सकता था। वहाँ पे तो उन्होंने सर जो टेबल वाइवा है और शॉर्ट केसेस में उन्होंने अच्छे मार्क्स दे दिए जो उनके पास थे। फर्ज करें कि ये जो एग्जामिनर था मुझे सिर्फ 40 मार्क्स दे देता, ये बिल्कुल ये आपको एक्चुअल वाक्य सुना रहा हूँ, 40 मार्क्स दे देता तो मेरी 5th या 6th पोजीशन अपने बैच में बन जाती और मेरा करियर ज़ाहिर है उससे स्टार्ट हो जाता। और अगर ये एक्चुअल मार्क्स देते जिनको देने चाहिए थे 70+, तो मेरी 2nd पोजीशन हो जाती थी यूनिवर्सिटी में, और अगर ये इससे भी ज़्यादा दे देते तो मेरी 1st पोजीशन हो जाती।
लेकिन मैं जो था वो मुझे उन्होंने फेल कर दिया, मुझे सप्लीमेंट्री देनी पड़ गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हिस्ट्री टीचिंग इतनी इम्पोर्टेंट होती है, मिस हो जाती है हमारे सीनियर से, और ये मिसिंग से जो है उस बंदे को जिसको जो अफेक्टेड हुआ है कैंडिडेट, अब ये बताइए कि उस बंदे का क्या हाल हुआ होगा, डिप्रेशन में चला गया वो, और डिप्रेशन से किसी को निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर है डिप्रेशन से आदमी को निकला, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर फ्लॉरिश किया। लोग आगे निकलते गए मुझसे, मैं पीछे रह गया, वो आगे निकलते चले गए। जब मैंने किया है फेलोशिप, उस वक्त तक हमारी क्लास में तकरीबन 15% 20% लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके थे। दे हैव डन इट। वो आदमी जो खुद मेरिट में रहा हो, वो आदमी जो है सप्लीमेंट्री लेता है, और वो आदमी जो है वो उसके बाद स्ट्रगल करता है लाइफ के लिए, एंड देन अगेन कम बैक आफ्टर मैनी ईयर्स, से अबाउट 10 years आफ्टरवर्ड्स, ब्रेड एंड बटर के लिए भागता रहता है इधर उधर, और वेस्ट करते हैं 10 years को किसी की। क्यों वेस्ट करते हैं? अगर ये केस प्रेजेंट कर देते हैं, मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये केस प्रेजेंट किए जाते हैं। अगर कोई फॉरेन एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें ये केस प्रेजेंट किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो है कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, क्योंकि उसमें जो है ना लिमिटेशन है, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो उसके स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी हो सकता है इसमें वक्त लग जाए। ये किसी को नहीं आता अगर, तो फिर उसको FCPS मेडिसिन नहीं क्लियर करना चाहिए, मैं नहीं मानता। ये केसेस जो होते हैं, ये 14 साल का बच्चा भी हो सकता है, हमारे पास तो 16-17 साल के जो टीनेजर है उनको भी हो जाता है। तो है क्या चीज़ ये? स्ट्रेप्टोकोकस ए है, ग्रुप ए पायोजेंस है, ये जो है लेंस फीट ग्रुपिंग है। अभी इसकी जो है ना ग्रिफिथ टाइपिंग अलग होगी, फिर ये अल्फा हेमोलिसिस है या बीटा हेमोलिसिस है या गामा हेमोलिसिस है, ये भी देखना होगा। आगे चलते हैं। द साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड अ सोर थ्रोट, वो तो किसी नॉन स्पेसिफिक है। फीवर, वो भी सॉफ्ट डेटा है। हेडेक, सॉफ्ट डेटा है, इससे आपको यानी बहुत सारी कंडीशन हो सकता है। सोलन लिम्फ नोड्स है, टेंडर लिम्फ नोड्स है, कहाँ पे हैं ये? अराउंड द नेक एरिया। एंड अ कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल दिखता है कैरेक्टरिस्टिक रैश। जब ये जुमला लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक रैश, तो उसको डिस्क्राइब करें। नंबर 1, विच एरिया इज इन्वॉल्व? द फेस इज फ्लश्ड एंड द रैश इज रेड। रेड का क्या मायने होते हैं? रेड के मायने होते हैं रेड, मैरून नहीं, पिंक नहीं। जो रेड की जो सोतेली बहने हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, ब्राइट रेड इन कलर आई विल सी। एंड ब्लांचिंग, आप उसको प्रेस करेंगे तो ब्लांच हो जाएगा। और ये जो है ये पेपुलर रैश है, ये मैक्यूलो पेपुलर रैश है। फेस के ऊपर है रैश मौजूद है, लात है। बच्चे की उम्र फर्ज कीजिए 11 साल 12 साल है, तो जहन में ये आएगा कि कहीं ये मीजल्स तो नहीं है। मीजल्स का तो बड़ा कैरेक्टरिस्टिक रैश होता है, और साइन क्वान भी होता है उसमें, वो उसमें है ही नहीं। कपड़े के स्पॉट्स भी नहीं थे, रेट्रो ऑरिकुलर कोई रैश नहीं था। स्प्रेडिंग ऑफ रैश ये थी कि इसी एरिया में ये रैश है अभी, और कुछ पार्ट नेक का इन्वॉल्व हुआ है, नेक भी इन्वॉल्व हुई है शोल्डर के साथ। एंड कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर जो है, रैश के अंदर जो है, इस फील्स, जब इसको प्रिपेयर किया तो सैंड पेपर होता है ना, सैंड पेपर जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आप मांगेंगे किसी से सैंड पेपर, तो जो मैकेनिक्स होते हैं उनके पास भी होता है, ये प्लम्बर्स के पास होता है, ये जो दूसरे वर्कर्स होते हैं सीमेंट वगैरह को डील करते हैं उनके पास भी होता है। उसको हाथ फेर के आप देखिए, बिल्कुल ऐसा रहेगा सैंड पेपर लाइक फीलिंग महसूस हो। अब ये रैश जो है रेड है, ब्लांचिंग है, और सैंड पेपर लाइक इसकी पल्वेशन है।
तो ये स्पेसिफिक रश हो गया, ये साइन क्यों हो गया एक डिजीज़ का, दैट इज स्कारलेट फीवर। ये चीज़ इरिसिपेला वो भी इस तरह की होती है, लेकिन वो डिफ्यूज़ होती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। टंग इसके अंदर जो है थ्रोट है, फीवर, ये सब होता है, बट ये चीज़ें नहीं होती। तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, तो हार्ड डेटा हो गया। टंग में भी रेड एंड बम्पी, रेड टंग है, बम्पी टंग है, ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये टंग जो है ये रेड और बम्पी और कंडीशन में भी हो सकती है, लेकिन बड़ी स्पेसिफिक टंग जो है आपको जो मिलेगी इसके अंदर, वो स्ट्रॉबेरी टंग, रेड स्ट्रॉबेरी टंग मिलेगी। और रैश जो है ना occurs as a result of the capillary damage by the exotoxin। क्योंकि ये ब्लांचिंग रैश है, तो एक्सोटॉक्सिन स्पेसिफिक जो रिलीज हुए थे, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, स्ट्रेप्टोकोकस ए इन्फेक्शन में या बी में एक्सोटॉक्सिन जो है प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, उनसे जो है ना वो वास्कुलाइटिस हुआ है, कैपिलरी डैमेज हुई है, और उसकी वजह से जो है ना ये रैश जो है सैंड पेपर लाइक हो गया है। क्योंकि कैपिलरीज होती है जगह जगह से जो है फट जाएंगी, टूट जाएंगी, और वहाँ पे ब्लड जमा हो जाएगा, जो धक्का मारेगा ऊपर और मैक्यूलोपैपुलर हो जाएगा। ऑन डार्कर पिगमेंटेड स्किन द रैश में हार्ड टू डिस्कन। अभी हमारी परिस्थिति मसला ये है कि हम लोगों के जो फेयर स्किन पे लोग हैं उनमें तो ये बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन डार्क इंडिविजुअल है, ब्लैक इंडिविजुअल है, उसमें रैश जो है ना उसको पकड़ना आसान काम नहीं होता। उसके लिए आपको लाइट रखनी है चेहरे के ऊपर, कंपैरिजन करना है, इंस्पेक्शन भी करना है, पैल्पेशन भी करना है, क्योंकि सन पेपर लाइक फील होता है, पैल्पेशन भी करना पड़ेगा आपको, तब ये जाके रैश डिस्कन होगा। और टंग जो होती है वो स्पेसिफिक टंग है, जो स्ट्रॉबेरी टंग है ना। इंट्रोडक्शन ये है कि ये इन्फेक्शन स्ट्रॉबेरी थ्रोट स्किन इन्फेक्शन का पार्ट है, वायरस का पार्ट है ये। द बैक्टीरिया यूजुअली स्प्रेड बाय द पीपल कॉफिंग और स्नीजिंग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बट इट कैन ऑल्सो स्प्रेड व्हेन अ पर्सन टचेस एन ऑब्जेक्ट दैट हैज द बैक्टीरिया ऑन इट एंड देन टचेस देयर माउथ और द नोज। सो ये ऑटो इन्फेक्शन भी हो जाएगा। द डायग्नोसिस टिपिकली कन्फर्म, अगर आप इसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो आप कल्चर कर दें थ्रोट स्वैब से, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे तो ये कमंजल नहीं है, ये कमंजल तो स्किन के ऊपर हो सकता है, ये होंठों के जो आपकी लिप्स होते हैं इसके पास ये कमंजल होगा। अदरवाइज अगर थ्रोट के अंदर ये मिलता है तो ये कमंजल नहीं होगा, ये इन्फेक्टिव एजेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप कल्चर करेंगे तो आपको कल्चर से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा है, टाइप कौन सी है, ए होना चाहिए, और इसके अंदर हेमोलिसिस कौन सा होना चाहिए, अल्फा बीटा या गामा हेमोलिसिस में से। तो इसके अंदर जो है वो प्रोबेबली बीटा हेमोलिसिस है, यानी पार्शियल। इंट्रोडक्शन ये है कि देयर इज नो वैक्सीन फॉर द स्कारलेट फीवर, ये आपको बता दिया जाए। इसकी वैक्सीनेशन अगर आप करते हैं तो ये होते ही ना। Otherwise, prevention is better than cure by frequent hand washing, not sharing the personal items, and staying away from the other people when sick. ज़्यादा को आइसोलेट कर दिया जाए इन्फेक्टिव फेज के अंदर। द डिजीज इज ट्रीटेबल विद एंटीबायोटिक्स ऑफ कोर्स, अगेंस्ट द एंटी स्ट्रेप्टोकोकल आप एंटीबायोटिक्स दे दें to reduce symptoms and to reduce the spread of the disease and prevent most of the complications as bacteremia, as septicemia, as pyoemia, as SIRS, as sepsis or septic shock, as MODS. Long-term complication as a result of the scarlet fever include involvement of the kidney, that is the glomerulonephritis, that is. It may cause rheumatic fever also. It may cause the arthritis, that is called the infective arthritis either or reactive arthritis. ये तो 20th सेंचुरी के अंदर ये जो एक प्रॉब्लम थी, याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड।
और वहीं पर जो है ना, जो हमारी मेडिकल वर्ल्ड है उसने बहुत सारी यानी तरक्की की है, बहुत एंटीबायोटिक्स बनाई हैं, अगेंस्ट दी ट्यूबरकुलोसिस बनाई हैं, अगेंस्ट दी सिफिलिस बनाई हैं, अगेंस्ट दी स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजोकोकल इन इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं। वो ग्रुप वाइज बनाई गई हैं, चूँकि वो जाहिर बात है वो बीटा लैक्टम्स हैं, जिन्हें तो पेंसिलिन होती थी एक ज़माने में, सल्फोनामाइड्स हैं मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैक्रोलाइड्स हैं, अर्ली एरिथ्रोमाइसिन was invented in 1938. Its severity was already declining, perhaps due to the better living and the hygienic, क्योंकि हाइजीन को प्रमोट कर रहे थे, यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है, वहाँ पे ये कर रहे थे, इसलिए इनका कंट्रोल अच्छा था। और अब डिक्लाइन इन द वायलेंस ऑफ द बैक्टीरिया, तो उनका जो प्रिवेंशन की वजह से बैक्टीरिया इतना वायलेंट नहीं रहा या इतना रेजिस्टेंट नहीं रहा, क्योंकि आपने अवॉइड की एंटीबायोटिक्स को। मगर अब मसला यह है कि जो भी रैश आया, किसी को भी फीवर हुआ, रैश हुआ, तो एंटीबायोटिक दे देते हैं। अब उन्हें नहीं पता कि कौन सी देनी चाहिए डायग्नोसिस के बगैर। आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन जब लिखता है कोई भी फिजिशियन, तो उसको लिखना चाहिए कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। कुछ फाइंडिंग लोग लिख देते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन लिख देते हैं और ट्रीटमेंट लिख देते हैं। तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ी हम चीज़ है, जो टॉप पे लिखेंगे ये डिजीज़ कौन सी है, वो लिखने को तैयार नहीं है लोग। हार्डली 5% भी इस मुल्क में जो है ना कभी भी डायग्नोसिस नहीं लिखते। हांगकांग के अंदर जो था कि आउटब्रेक आई थी 2011 में आ चुकी है, लेकिन अभी रिसेंटली बात है। फिर यूनाइटेड किंगडम में 2014 को हुई है, फिर 2018 को हुई है। 68% जो थी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई है इसमें 2014 में 2018। वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, वो डायग्नोसिस भी बना लेते हैं। हमारे यहाँ ये है कि उसको कोई भी इन्फेक्शन करार दे दिया जाता है, कि एंटीबायोटिक तो वो दे देते हैं, तो फीवर जो है वो ख़त्म हो जाता है, रैश खत्म हो जाता है। अब उसको नहीं मालूम कि ये कौन क्या चीज़ है। रिसर्च पब्लिश इन अक्टूबर 2020 रिसेंट की बात हो रही है, showed that the infection of the bacterium by 3 viruses has led to more virulent strain of the bacteria. अब ये जो है ना बैक्टीरियम जो है मोर वायलेंट स्ट्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो बैक्टीरिया इनगल्व करता है वायरसेस को, उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो अपनी वायलेंसी उसकी बढ़ जाएगी, जो अंदर जो वायरस जाएगा वो उसकी जो वायलेंट है या इन्फेक्टिविटी को ज़्यादा कर देगा, और उस पर इफेक्टिव जो है ना थेरेपी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर मैंने आपको पहले भी बता दिया, सोर थ्रोट है, फीवर है, मैलेज है, ये नॉन स्पेसिफिक है, हेडेक है, नोजिया, वोमिटिंग है, एब्डोमिनल पेन। वाई? बिकॉज ऑफ द वास्कुलाइटिस may also be present. Scarlet Fever usually follows the group A streptococcus infection, वो बता दिया गया था। Penicillin group A है ये, that involves the streptococcal sore throat or pharyngitis or pharyngotonsillitis. The signs and symptoms are therefore those of streptococcal sore throat, but these are followed by the inclusion of the widespread rash with neck पे, face पे, torso पे, branching rash और reddish rash। और ये ब्लांचिंग है, और ये क्या था, पेपर जो है आपका सैंड पेपर लाइक इसकी पैल्पेशन पे आपको मिलेगा। The rash appears 1 to 2 days later, but may appear before or up to 7 days following the feeling sick. तो ये 2 से लेके और 7 दिन के दरमियान ये रैश रहता है और ख़त्म हो जाता है। ये जनरली हार्ट यानी सारे डिफ़िकल्टी होती है इसमें, ओडाइनोफेजिया होता है इसको, पेशेंट को swallowing में पेनफुल होती है। Not all cases, however, present the fever. The degree of the tiredness may vary. The sore throat and the tongue changes might be slightly absent. ये हो सकता है कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो। The rash can be पैची हो सकता है, ये टिपिकल केसेस है rather than diffuse.
cough, hoarseness, running nose, diarrhea. Conjunctivitis, diarrhea is parental diarrhea, and conjunctivitis are typically absent in the scarlet fever. इसके अंदर कॉमन नहीं है डायरिया, रनिंग नोज कॉमन नहीं है, होर्सनेस कॉमन नहीं है, लेकिन हो सकती है. सच सिम्टम इंडिकेट दैट इज मोर लाइकली वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन होने होता है, चांसेस होते हैं इन चीज़ों के ज़्यादा, और इसके अंदर जो चांसेस होते हैं इनमें कम होते हैं. इनमें ज़्यादातर आपको फ्रेंजाइटिस मिलेगा, इसके अंदर फ्रेंजाइटिस मिलेगा, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक रैश मिलेगा. इसका आइडेंटिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. फीवर जो है 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है. टॉन्सिल्स को अगर एग्जामिन करेंगे तो टिपिकली कवर्ड विद एक्सुडेट. इसके अंदर सूडो में आपको मिलेगी मेम्ब्रेनस सूडो मेम्ब्रेन. द थ्रोट में रेड विद स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑन द रूट ऑफ द माउथ. इसके अंदर फॉर्चहीमर्स स्पॉट्स मिलेंगे, इसको कहते हैं फॉर्चहीमर्स स्पॉट्स. पैलेट में मिलते हैं ये ज़्यादातर. यूबुला कैन लुक रेड एंड सोलन, and 30 to 60% of cases have associated with enlarged tender lymphadenopathy. And during the first 2 days of illness, the tongue may have whitish coating with which a red swollen papillae protrude out. आजकल है ना स्ट्रॉबेरी, आपको देखिएगा, एक स्ट्रॉबेरी निकालें, उसको देखें, गिविंग द प्रेजेंस ऑफ वाइट स्ट्रॉबेरी टंग. जो है ना, एक बिल्कुल ताज़ा आती है स्ट्रॉबेरी, वो बिल्कुल रेड होती है, वो होती है रेड स्ट्रॉबेरी. अब इसके बाद कुछ दिन रख दें अगर उसको, तो उसके अंदर जो पार्ट कुछ बीच के होते हैं उनमें वाइट हो जाती हैं, तो वाइट स्ट्रॉबेरी कहलाते हैं. वाइट स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, यानी स्ट्रॉबेरी टंग है, फेजेज में है, रेड होती है, वाइट हो जाती है. प्रोट्रूडिंग टंग है, मैक्रोग्लॉसिया हो जाता है, टंग की साइज भी बढ़ जाता है, टेंडर भी हो जाती है. After 4 to 5 days when the white coating sheds, उसके बाद जो है ना रेड स्ट्रॉबेरी टंग बिल्कुल साफ वाज़ेह नजर आ जाएगी. अगर आप स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो वहाँ तो मसला दूसरा है, पहले वो रेड होती है फिर वाइट होती है. लेकिन ये डिजीज़ है, इसके अंदर कोटिंग जो है, जो लंग की कोटिंग है वो वाइटिश होती है, उसके दरमियान में कि वो प्रोट्रूड आउट हो रहे होते हैं. लेकिन जब वो कोटिंग ख़त्म हो जाती है तो प्योरली रेड स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है. The symptomatic appearance of the tongue is part of the rash that is characteristic of scarlet fever. ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई रेड स्ट्रॉबेरी टंग की बात करता है, कैरेक्टरिस्टिक रैश की बात करता है, सोर थ्रोट की बात करता है, तो आपके जहन में ये डिजीज़ को आना चाहिए. ये देखिए, ये एक्सुडेट देखें, इसने ऊज आउट किया है. तो टॉन्सिल जो है ना, इन्फेक्टेड टॉन्सिल्स है, एक्सुडेटिव टाइप के टॉन्सिलाइटिस है. और ये देखिए यूबुला को देखिए, आप बिल्कुल रेड है. ये फॉर्चहीमर स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स ऑन द पैलेट. लुक दिस. इसके अंदर जो है वो स्कारलेट फॉर्म जिसको रैश कहते हैं, रेड स्किन विद स्मॉल बम्प्स with resembling the goose bumps. It typically appears as small flat spots in the neck or the torso, trunk may, and before developing into small bumps which is spread to the arms and then the legs. It any centrifugal इसका distribution है. It tend to feel like sandpaper. The cheeks might look flushed, the pale area around the mouth. The scarlet fever rash generally looks red on white and pale skin and might difficult to visualize on a brown or black skin. Which स्किन है किसी उसमें तो फिर भी पकड़ लेंगे. ब्लैक स्किन में आपको लाइट डाल के अच्छी तरीके से एग्जामिन करना पड़ेगा, पैल्पेट करना पड़ेगा, टंग को भी देखना है, बैक ऑफ द यूबुला देखना है, फॉर्चहीमर स्पॉट्स को देखना है. In whom these bumps are typically larger, the skin less look like a sandpaper on palpation, and the perioral pallor less obvious. The skin may feel itchy, but painful नहीं, itchy है, a more intense redness on the inside of the skin folds, and creases might be noticed. These are the lines of the petechiae appearing as pink red areas devoted in the armpits and elbow pits जहाँ होते हैं वहाँ पे आपको petechial type के रैशेस मिलेंगे. It takes around a week or
of the main rash to disappear, this may be followed by the several weeks of peeling of the skin and typically the fingers and the toes. ये ऐसा ऐसा शेड हो जाएगी आफ्टर 7 days में. Third day squamation process usually begins on the face, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से फिर डाउनवर्ड ऑन द बॉडी, वहीं से ये पीलिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता. समटाइम द पीलिंग इज द ओनली साइन दैट स्कारलेट फीवर अकर. मतलब क्योंकि वो टाइम गुजार के आता है तो एंड में आपके पास आता है, प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उसमें आपको सिर्फ पीलिंग ऑफ द स्किन मिलेगी, वहाँ पे डायग्नोसिस बताना मुश्किल हो जाएगी. एंड द केस ऑफ द स्कारलेट फीवर इज अनकॉम्प्लिकेटेड. Recovery from the fever and the clinical symptoms other than the desquamation occur in 5 to 10 days. Desquamation तो और डिजीज में भी होती है ना, नेक्रोसिंग फेजाइटिस में भी होती है, इरिसिपेलस में भी होती है, और दूसरी कंडीशंस टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस में भी होती है, बहुत सी कंडीशन में होती है. मगर जो पास हिस्ट्री है वो आपको बता देगी कि ये स्कारलेट फीवर था. स्किन विल बी विद अ सनबर्न अपीयरेंस. आखिरी प्रोसेस का ये है जो आपके सामने आएगा, ऐसा लगे किसी ने हाथों को जलाया है, जब पीलिंग हो जाती है उसके ऊपर उखड़ रही होती है. एंड दैट टाइम लुक दिस रैशेस, स्कारलेट रिफॉर्म रैशेस. ब्लैक आदमी में ये देखें आप, इसको पकड़ना कितना डिफिकल्ट है. यहाँ पे आपको नजर आएंगे ये. अब इसको आप पैल्पेट करेंगे तो फिर सैंड पेपर लाइक आपको फीलिंग मिलेगी. यहाँ 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 इसमें तो बहुत क्लियर है, इसमें बहुत डिफिकल्ट है. वेरिएबल प्रेजेंटेशन है. चिल्ड्रन जो है यंगर देन 5 years old में एटिपिकल प्रेजेंटेशन. चिल्ड्रन यंगर देन 3 years old कैन प्रेजेंट विद नेजल कंजेशन एंड लोअर ग्रेड फीवर. इन्फेंट में प्रेजेंट विद सिम्टम्स इंक्रीज इरिटेबिलिटी एंड डिक्रीज. वैसे असल में जो है ना, ये डायग्नोसिस क्लिनिकल जब आप बना लेते हैं, सस्पिशियस डायग्नोसिस है, तो थ्रोट स्वाब लेके कल्चर करें और आपको ये ज़ाहिर है वो मिल जाएगा. इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसलिए हुई है कि इसके अंदर बैक्टीरिया हुआ है, पाइमिया हुआ है, पेशेंट को सेप्टिसीमिया हुआ है. सेपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि रेयर है लेकिन हैं. एनीवे इट कैन स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इन द ब्लड एंड नियर बाय जो भी है एरियाज इन्वॉल्व हो सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर टंग इन्वॉल्व हुई है तो इसके साथ नोज़ इन्वॉल्व हो सकती है, नोज़ के साथ पोस्टीरियर फेरिक्स इन्वॉल्व हो सकता है, लैरिक्स इन्वॉल्व हो सकता है, जुस्टिशन ट्यूब इन्वॉल्व हो सकती है, ऑटाइटिस मीडिया हो जाएगा पेशेंट को, मास्टाइटिस तेज हो जाएगा, साइनसाइटिस हो जाएगा, और रेट्रोफरेंजियल एब्सेसिस हो सकते हैं इन लिम्फेटिक ड्रेनेज की वजह से. रीजनल स्प्रेड जो है, अब यहाँ देखें बिल्कुल रेड है, ये इसका पूरा एरिया देखिए. अब इसको जो है ना इरिसिपेलस से डिस्टिंग्विश करने के लिए सारी बॉडी को चेक किया जाएगा, और इस जहाँ पे बम्प्स नज़र आ रहे हैं इसको फील करें आप, तो आपको सैंड पेपर लाइक फीलिंग मिलेगी जो इरिसिपेला में नहीं होती. अब ये देखें इसके रैशेस को, फेस जो है ना इसके ऊपर देखें रेड है, रिजिमा है, टिप्स ऑफ द नोज, और ये सारी रेड है. इसके अंदर छोटे 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 आपको मिल रहे हैं पेप्यूल्स. ये पेपिलोमैकुलर रैश है. और फिर लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए जो है ना ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको बता दें कि रीजनल है, लेकिन अगर ये स्प्रेड हुआ है अदर मेथोडोलॉजी से, मिसाल के तौर पे इसको सेप्टिसीमिया हुआ है पेशेंट को, तो एंडोकार्डाइटिस है, निमोनिया है, मेनिंजाइटिस, ये कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल है. नॉन सेपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में ये है कि बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मिमिक्री, उसके ज़रिए के ये क्या करता है कि ये इम्यूनिटी को इन्हांस करके या तो जो है ना ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देगा, स्प्रेड जो है ना नेक्रोटाइजिंग जिसको कहते हैं आप, स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये जो है रेपिड एंड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ही आता है. इसी तरह रोमेटिक फीवर है, वो भी इस तरह ही से होगा कि इम्यूनिटी बाय इम्यूनिटी जो है ना कॉम्प्लिकेशन विल अकर लाइक द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और लाइक रोमेटिक फीवर. वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री वाली थ्योरी है, उसकी वजह से ये इन्हांस हुआ है रिएक्शंस. इसी तरीके से रिएक्टिव आर्थराइटिस का भी यही मसला है.
बिकॉज ऑफ द मॉलिकुलर मिमिक्री थ्योरी है पूरी कि उसके मॉलिक्यूल उससे मिलते जुलते थे, तो बहुत एंटीबॉडी ने अटैक किया वहाँ पर जहाँ पे टिश्यू मैचिंग हो रही थी, वो जो एंडोकार्डियम था, वो जो था साइनोवियम था, इसी तरीके से वो ग्लोमेरुलाई थे, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से डैमेज हो गया। और पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जाहिर बात है वो इसको बताना बहुत आसान है, और वो जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लोकलाइज इन्फेक्शन था, स्प्रेड हो गया एक्सोटॉक्सिन के ज़रिए। एक्सोटॉक्सिन के ज़रिए उसने जो है ना वो रैश प्रोड्यूस किया, और स्ट्रेप्टोकोकस स्कारलेट फीवर नीड स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजेस फॉर देयर पैथोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, इनके इसको बैक्टीरियोफेज चाहिए, उसका नाम है T12। ये जो है ना वो बैक्टीरिया है जो स्पेसिफिक वायरस को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपनी पैथोजेनिसिटी उससे डेवलप करते हैं और ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। अब इसकी स्पेसिफिक एक्सोटॉक्सिन ए है, SPA है, जो स्पेसिफिक एक्सोटॉक्सिन है इसकी स्कारलेट फीवर। इसके अलावा टॉक्सिन इसके सुपर एंटीजीन्स भी हो सकते हैं। Extensive immune response by activating some of the cells that are mainly responsible for the person's immunity system. तो इम्यूनिटी जो इन्नेट थी उसको इन्हांस कर देते हैं, और जब इन्हांस कर देंगे तो वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री अगर हो गई तो उस जगह को टारगेट बना के डैमेज कर देंगे। इसका मायने ये हो। अब ये जो है ना आपको बताया था, ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से ये स्ट्रेप्टोकोकल पैथोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और बैक्टीरियोफेज T12 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें याद रखना बहुत मुश्किल है, इसमें से कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। T12 वायरस इसके साथ स्पेसिफिक है, तो इतना तो कम से कम आना चाहिए। जो आदमी SCDPS पार्ट 2 एग्जामिनेशन दे रहा है और एग्जामिनर जो है फॉरनर है, वो स्कारलेट फीवर पे लेके आ गया, ठीक है ना, तो ले आया है तो फिर इसको बर्दाश्त करें आप, आपको आना चाहिए। ये चीज़ें कुछ बताई हैं मैंने इसमें। ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ना इसकी, जितने भी रैशेज हैं फीवर के साथ होते हैं और सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट करते हैं, उनमें वायरल एक्जांथम, एलर्जिक टू द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ड्रग इरप्शंस, कावासाकी डिजीज चिल्ड्रन में होती है जिस पर डिस्कशन होगा बाद में, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम दोनों, या स्ट्रेप्टोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम जिसमें पीलिंग ऑफ द स्किन है जिसमें होती है। ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि आपको इसका स्वाब लेना होगा, कल्चर करना होगा, थ्रोट कल्चर करना होगा और RAG करना होगा, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, जो आजकल जो कोरोना के लिए भी करते हैं, उसका स्पेसिफिक इसका लिए आप टेस्ट करते हैं रैपिड एंटीजन डिटेक्शन। और ऐसे टीचर देख लें इसका, वो भी देखा जा सकता है, उसको उससे आपको पता चल जाएगा। मगर ये कहते हैं कि रैपिड एंटीजन डिटेक्शन इज वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च। फॉल्स चूँकि इसके अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी हो सकती है पॉसिबल, क्रॉस रिएक्शन की वजह से। इसको ज़रा ध्यान में रखिए, कोई भी टेस्ट जो 100% सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं होता। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ASO टीचर देख लें, एंटी हाइड्रोलाइज एंटीबॉडीज देख लें, एंटीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस B या A एंटीबॉडी जो अवेलेबल हो, उससे भी पता चल जाएगा कि ये स्प्रेडिंग इन्फेक्शन है। लेकिन जो इसका असल बात है कि थ्रोट कल्चर अगर सही तरीके से किया जाए तो ये डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर लेट अपेयर हुआ पेशेंट तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा। मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स आपको देनी है, और सबसे पहले बीटा लैक्टम्स सेंसिटिव है, उसके बाद फिर दूसरों का नंबर आता है इरिथ्रो यानी मैक्रोलाइड्स हैं, और उसके बाद जो है नंबर जो आता है उसमें सल्फोनामाइड भी दी जाती है, बच्चों में इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन इसके अच्छे जो है फ्यूजिटिक एसिड है, लिंकोमाइसिन्स हैं, और आजकल जो है थर्ड जनरेशन जो है वो फ्लूरोक्विनोलोन्स हैं, उनके अंदर जो है ना बेस्ट ये ना रिस्पॉन्स करता है। सबसे अच्छा तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन फॉर 7 to 10 days। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा अगर आप डायग्नोसिस ही गलत बनाई थी। हर एक को आप एमॉक्सिसिलिन दे रहे हैं, हर एक को ऑगमेंटिन दे रहे हैं, तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और फिर ये एंटीबायोटिक आपके काम की नहीं रहेगी। इसलिए इसको स्पेसिफिकली जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोसिस बनाएंगे तो फिर आप करेंगे ना, जब आप डायग्नोसिस ही नहीं बनाएंगे तो नहीं कर सकते। वैक्सीन जो है ना इसके नहीं बनाने की कोशिश की गई है अभी तक, जो है 2020 तक सेफ वैक्सीन नहीं बना पाएगी, क्योंकि इसका मसला ये है कि ये इसके अंदर जो है ना वो बैक्टीरियोफेज का मतलब भी बताया मैंने आपको। इसके अलावा ये जो है ना इसके अपनी जो ग्रुपिंग है ए है, और इसके अंदर जो टाइपिंग है ये सीरोटाइप्स इसके बहुत सारे होते हैं, तो उसकी वजह से वो स्पेसिफिक आप वैक्सीनेशन अभी तक नहीं बना सकते। इसमें एक टेस्ट करते थे, डिक टेस्ट, जो हमारे ज़माने में उस्ताद थे वो पढ़ाते थे। क्या है करते हैं कि इंजेक्ट करते हैं डाइल्यूट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई नोन टू कॉज स्कारलेट फीवर, यानी जिसके अंदर एक्सोटॉक्सिन ए स्पेसिफिक है इसका, और बैक्टीरिया T21 उसका अंदर जो है डाइल्यूटेड स्ट्रेन बना के स्किन को इंटरनल टेस्ट है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो लिविज रिस्पॉन्स हो जाएगा, वो एरिया सारा का सारा जो है स्पेसिफिक वास्कुलाइटिस प्रोड्यूस करके वो रैश प्रोड्यूस कर देगा। द रिएक्शन सीन आफ्टर द इंजेक्शन मोर नोटिसेबल आफ्टर 24 आवर के बाद उसको रीचेक करते थे, इसको कहते थे डिक टेस्ट। क्योंकि इसके अंदर सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का प्रॉब्लम आ रहा था, और फिर ये था कि ये बनाना बड़ा मुश्किल था। इसके एजेंट डिस्क एजेंट कहते हैं इसको, इसलिए ये आजकल नहीं करते, लेकिन हमारे ज़माने में 75-76 में इसको पूछा जाता था, इम्तिहान में भी पूछा जाता था, और वो उन्होंने बताया है कि वो करते भी थे इसको। ये उस ज़माने की बात है, बहुत पुरानी। कहने का मतलब है कि नाम आपको यहाँ आना चाहिए कि भाई डिक टेस्ट भी कोई चीज़ होती है। तो दिस इज़ हाउ दिस स्कारलेट फीवर इज देयर। यानी अच्छा खासी मैंने लंबी चौड़ी बात कर दी, जबकि जाहिर है कि कुछ लोगों का ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी है तो उसको 100% परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकें एक डिजीज़ को दूसरी डिजीज़ के साथ डायग्नोसिस बना सकें, एंड देन यू गो फॉर द मैनेजमेंट प्लान। वमा अलैना इल्लल बलाग। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।